Hello everyone. Let's look at this last 5 year CAPFAC cutoffs. CAPF 2018, 19, 20, 21 and 22. Did you notice any particular trend in this? Now things are getting all-time highest. In CAPF 2022, the cutoff for general candidate is 345 marks. It was all-time highest. Now, what would be the trend for CAPF 2024? Would it increase or decrease? So I'll divide this video in 5 parts. In the first part, I'll talk about is it worth preparing for CAPF in 2024? In the second part, I will discuss about current trend in the CAPF exam. Who are your major competitors? Whether it is CAPF aspirant or civil service aspirant. Now, the third thing which I will talk about is the 5% rule in CAPF. And the fourth thing is stressing and not focusing on the right thing. And the last thing we'll talk about is whom to follow. Now, the first thing is it worth preparing for CAPF? I'll talk about certain reasons. You should be aware of these reasons before preparing for any particular job, not only with the CAPF. If I talk about some challenges in the CAPF, the first is there are high attrition rate in CAPF. What do you mean by high attrition rate? It means these people, these soldiers, these officers, they took voluntary retirement after 2 years of service, 3 years of service, 4 years of service. And what are the factors which contribute it? There are multiple factors. It could be the challenging posting. It could be the work-life balance. So there are multiple challenges. Now, why I'm telling you this, why there is a high attrition rate? Because there is an expectation versus reality mismatch. Whatever is shown you on the media, whatever is shown you by the social media influencers, this could be a totally different picture when you all together go into the forces and you basically serve in that area. Now, what happened is वहां जाने के बाद पता लगता है कि तो है नहीं ऐसा कुछ जो आप सोच रहे थे, वो जो रील्स में दिखाया जा रहा था, जो आपको बताया गया था वाई सेलिंग those courses, वहां आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा. वहां पे ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट. सो देयर इज अ मिसमैच बिटवीन एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी. Now, second thing is about the promotional issues and stagnation. No doubt there are promotional issue and stagnation. There is a report, एक रिपोर्ट है MHA की रिपोर्ट, अगर आप देखोगे प्रमोशनल इश्यूज हैं वहां पे. नाउ क्योंकि वहां पे कैडर ऑफिसर जो हैं स्टैग्नेशन बहुत ज्यादा है, 15 से 20 साल का आप वहां पे स्टैग्नेशन देखोगे. आईपीएस ऑफिसर्स को वहां पे लेके आया जाता है और दे आर बेसिकली होल्डिंग द की पोजीशंस. इसीलिए कार्डर ऑफिसर्स के अंदर डीमोटिवेशन है, कुछ उनको इंसेंटिव नहीं है और अच्छा काम करने का. इसके साथ ही देयर इज अ लेस सैलरी कंपैरेटिवली टू प्राइवेट सेक्टर. अगर आप देखोगे एंट्री लेवल पे प्राइवेट सेक्टर में नो डाउट कि सैलरी कम है कंपैरेटिवली टू गवर्नमेंट सेक्टर, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर सम एक्सपीरियंस इन द प्राइवेट सेक्टर, यू विल गेट बेटर सैलरी कंपेयर टू द दिस public sector. So this is also a reality. So I am telling about you reality not to discourage you but to give you clarity कि आप जिस एग्जाम के लिए जाना चाहते हो वहां पे क्या है. I am showing you the reality. I am not even demotivating you. I am not even motivating you to join any particular services. मैं आपको सिर्फ एक reality दिखा रहा हूँ. इसके बाद डिसीजन आपका होगा. Now the second thing we'll talk about is cutthroat competition. If you analyze the market trend, do you know the probability of getting selected in the CAPF is less than 1%? And the probability of getting the force of your choice, it is even I think 0.1%. आपकी प्रेफरेंस की फोर्स मिलेगी. तो इतना ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है, स्टिल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. दूसरा आप देखोगे हु आर योर मेजर कॉम्पिटिटर्स, दैट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड. बिकॉज सीएससी कैंडिडेट आफ्टर राइटिंग द प्रीलिम्स एंड आफ्टर द रिजल्ट इज अनाउंस्ड, दे ऑल्सो गो फॉर द CAPF एंड वो ऑलरेडी प्रिपरेशन में होते हैं. उन्होंने पहले ही पेपर 1 को क्लियर किया होता है, पेपर 2 के लिए वो मतलब टेस्ट पहले ही लिख चुके होते हैं. सो CAPF वुड बी टू कंपैरेटिवली इजी फॉर देम. सो 1.5 महीने की वो तैयारी के अंदर, 1.5 से 2 महीने की तैयारी के अंदर CAPF को क्लियर करने की कोशिश करेंगे. सो दूसरा आप देखोगे कट ऑफ इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर. मैंने आपको अभी ट्रेंड दिखाया था जिसमें लास्ट 5 इयर्स की कट ऑफ मैंने आपको दिखाई थी. तो इन 2022 द कट ऑफ वाज 345 फॉर जनरल कैंडिडेट. इट वाज ऑल टाइम हाईएस्ट. सो अंडरस्टैंड 2023 के अंदर कट ऑफ क्या होने वाली है और 2024 के अंदर कट ऑफ क्या होने वाली है. इट कुड बी हायर ही होगी अनलेस एंड अनटिल पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना हो जाए टू ब्रिंग द कट ऑफ डाउन. वो एक अलग सिनेरियो होगा, बट गोइंग बाय दिस ट्रेंड cut off will increase. But 2023 paper was to some extent on a difficult side. I think the cutoff would be lesser, but in 2024 nobody knows what will happen. So there is an uncertainty. Next point is ask your seniors, mentors and who got selected recently. There is a particular industry who is basically teaching you for this exam. There are already the old mentors, there are already the selected person, I would say, but do not believe them blindly because in their time the competition was different, the demand of the exam was different. So I'm saying अगर आपको कोई रिलेटिव है, अगर आपको कोई एल्डर ब्रदर है, अगर आपको कोई सीनियर है, वो गोट सिलेक्टेड रिसेंटली, 1 या 2 साल में कोई सिलेक्ट हुआ है, तो उनकी बातों को आप थोड़ा सा मान सकते हो.
अगर आपको कोई उनकी बात कोई लॉजिकल लगे तो कर सकते हैं, कोई सजेशन आपको दे, कुछ रिसोर्स आपको बताएं, कुछ रेकमेंड आपको करे, तो आप वो चीजें ले सकते हैं। बट 10 साल पहले किसी का सिलेक्शन हुआ था और उस प्रोसेस का उसको नहीं पता करंटली एग्जाम का क्या पैटर्न है। मैं आपको बता सकता हूं 2013 में पैटर्न चेंज हुआ है सीएपीएफ का, 2018 में पैटर्न चेंज हुआ है, 2023 के अंदर स्लाइटली आई एम सीइंग थोड़ा चेंज आया है, 24 में मुझे लगता है कि कुछ और चेंज आएगा। सो 23 इज अ वाटरशेड मूवमेंट फॉर द नेचर ऑफ चेंज ऑफ सीएपीएफ। 2018 भी चेंज था, 2013 में भी चेंज था। तो अंडरस्टैंड दिस कि कितने साल पे चेंज हो रहा है, 5 साल के इंटरवल पे आई सी कि हर साल कुछ ना कुछ पैटर्न में चेंज होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पिक सम बाउंड्रीज दैट विल गिव यू सम मोटिवेशन टू वर्क। नो डाउट देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन, और इतना ज्यादा आप कंपटीशन देख के या फिर सिलेक्शन रेट देख के आप शायद डर जाओगे। तो आप क्या कर सकते हो, यू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लुक एट सम मोटिवेशन, यू कैन लुक एट सम बाउंड्रीज, यू कैन लुक एट कि आपको वहां पे जाके क्या अलाउंसेस मिलेंगे, क्या बेनिफिट मिलेंगे असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए। सो यू शुड लुक फॉर सर्टेन बाउंड्रीज। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द 5% rule. What is this 5%? These candidates who basically made to the interview, and out of this 5% only 1% is getting into the final merit list. So suppose 100 aspirants are preparing for this exam, 80% जो aspirants हैं they are just belong to a herd mentality, they follows a one particular strategy, उसी पे वो stick करते हैं and they keep on ranting. सो बाकी बचे हुए जो 20% जो लोग हैं उसमें से काफी लोग पीटी के अंदर बाहर हो जाते हैं और मेडिकल्स के अंदर बाहर हो जाते हैं। तो कुल मिला के 5% ही इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं, उसमें से 1% ही फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर जाते हैं। सो व्हाट आर दिस 5% पीपल हु एक्चुअली मेड टू द इंटरव्यू, व्हाट थिंग्स दे डू डिफरेंटली, ये आपको पता होना चाहिए ना। द फर्स्ट थिंग इज दे डोंट डू इज दे डू नॉट ब्लेम द सिस्टम, दे डू नॉट डू द रेंटिंग, दे डू नॉट इन्वॉल्व इन द ग्रुप्स, अननेसेसरी ग्रुप्स जहां पे इस एग्जाम के बारे में, इसकी लिमिटेशन के बारे में डिस्कस किया जाता है अननेसेसरली कि एग्जाम टाइम से नहीं हुआ, डिले हो गया, इंटरव्यू कब होंगे, इलेक्शन ईयर का क्या फर्क पड़ेगा इसके ऊपर। सो ऑल दीज थिंग्स, दीज आर द ट्रेड्स ऑफ हाईली अनसिंसियर स्टूडेंट्स। किसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको क्या मतलब है, एग्जाम एक दिन होगा, इंटरव्यू एक दिन होगा, सारी चीजें एक दिन होगी, क्यों आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। नाउ द सेकंड थिंग इज दिस टॉप 5% स्टूडेंट्स व्हाट दे डू नॉट डू इज दे डू नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी मतलब किसी ने एक स्ट्रेटजी बता दी, सभी उसी में लगे हुए हैं। आई हैव सीन पीपल दे आर इन्वॉल्व इन अ ग्रुप जहां पे 1000 से 1500 तक बच्चे एक ही ग्रुप में एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम वेयर यू शुड, आई एम नॉट सेइंग you should exit that group, but you should opt for other things also, जो कि आपको एक edge दिला पाएगा। Now the thing is, when spatial knowledge become general knowledge, that is the time you should move to find better knowledge. तो अगर सभी बच्चे एक ही नॉलेज को एस्पायर कर रहे हैं, एक ही नॉलेज को पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज द टाइम यू शुड लुक फॉर अदर नॉलेज ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फाइंडिंग अ नीश एंड गो डीपर इन दैट नॉलेज। आप जो पेपर 2 की प्रिपरेशन करते हो, पेपर 1 की प्रिपरेशन करते हो, काफी सुपरफ्लुअस करते हो। आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा डीप डाउन उसके अंदर जाना चाहिए, फिर आपको उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप थोड़ी सरफेस लेवल पे ही नॉलेज को एक्यूमुलेट करते हो। आई थिंक दिस इज the major drawback in your preparation. You just scratching the surface. I've seen most of the tutors I've seen, they are only discussing the surface level knowledge, और ultimately बाद में आपको that cost you a one particular chance in CPF. Next thing is luck plays a decent role in your CPF preparation, and you can maximize your luck by approaching to the right mentor and also the right person. These things will definitely will help you. If you come in contact with the wrong person, I think the chances of your luck will decrease only. Next thing is keep an eye on where value is basically given to you. These value can be imparted by your mentor. These value can be given by any particular educator, your seniors. So I would say keep an eye on where value is given to you, not just false promises that you will achieve this, you will do this, you will do this. No, this is the red flag, I would say. Now the fourth point is stressing and not focusing on the right thing. I've seen 80% जो लोग हैं, they are just basically accumulating the resources. Resources को सिर्फ accumulate करना, उनको कभी रिवाइज नहीं करना, मल्टीपल रिसोर्सेज, एनरोलिंग इन द डिफरेंट कोचिंग, ये आपके सिलेक्शंस के लक्षण नहीं है, ये आपके सिलेक्शंस को कम कर देते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा सोर्स का एक्यूमुलेशन करोगे उतना ज्यादा आपके सामने कंफ्यूजन आएगी। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, नॉट ओनली द पेपर 1 बट पेपर 2 ऑल्सो। व्हाट यू कैन डू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डूइंग द एक्चुअल थिंग। एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो कीजिए, राइट एज मच टेस्ट यू कैन डू, रिवाइज एज मच एज यू कैन डू। ओके, अननेसेसरी रिलाई मत कीजिए किसी चीज पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। नाउ अनदर थिंग इज टेकिंग टू मच स्ट्रेस। रिपीटर्स में सबसे ज्यादा ये होता है, अगर रिपीटर्स का 1 साल नहीं होता, सो दे कैन क्वेश्चन देमसेल्फ व्हाई आई एम नॉट गेटिंग सिलेक्टेड सो फार। और दूसरी चीज
होती है, क्योंकि एक सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये साल भर की एक जर्नी होती है। तो एक सिलेक्शन में, एक चांस में आपका नहीं होता। व्हाट यू डू इज बेसिकली नेक्स्ट टाइम थोड़ी कंप्लेसेंसी लेवल आ जाता है। व्हेन यू बिकम कंप्लेसेंट, तो आप जो है ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करना चाहते हो, तो सोशल मीडिया के आप इन्फ्लुएंस में आके यू कीप ऑन कंज्यूमिंग द टॉक्सिक इन्फॉर्मेशन. So what I'll suggest is put your heads down and work on objectives and keep an eye on the CPF where you are getting some sort of value. Watch those videos जहां पे थोड़ी सी आपको वैल्यू मिलती है. Now the last fifth point is whom to follow in your CPF journey. What you can do is you always look for a problem solver. कहने का मतलब है जो आपकी किसी ना किसी प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ सम ट्यूटोरियल, विद द हेल्प ऑफ सम वीडियो, विद द हेल्प ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ वन पर्टिकुलर ऐसे, अगर आपको कोई हेल्प मिलती है, सो फॉलो दैट पर्टिकुलर क्रिएटर. सेकंड थिंग इज फोकस ऑन समवन हु एक्चुअली गिव्स यू वैल्यू. जहां पे आपको वैल्यू मिल रही है ना, जहां पे आपको उस बात को मानने से आपके अंदर कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है, आपको कोई प्रोटोटाइप दिखा रहा है, आपके सामने ये चीजें रियलिटी में सोल्व की जा रही है, तो वो चीज आप कर सकते हो. थर्ड थिंग इज पिक एंड चूज व्हाट वर्क्स फॉर यू. आप जो है अननेसेसरली किसी एक स्ट्रेटेजी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए. कीप योर आईज एंड ईयर ओपन. जो आपको लगता है कि दिस स्ट्रेटेजी इज रेलिवेंट फॉर यू, प्लीज अडहियर टू द स्ट्रेटेजी. और जहां पे आपको लगे व्हेन स्पेशल नॉलेज इज बिकमिंग जनरल नॉलेज, नाउ इट्स द टाइम यू शुड लुक फॉर अदर एस्पेक्ट्स. आप दूसरी बेटर नॉलेज की तरफ जा सकते हो. नाउ पेपर 2 इज द एरिया वेयर आई हैव एक्सपर्टीज. अगर आपको किसी भी चीज में, पेपर 2 की कोई भी चीज में आपको प्रॉब्लम हो, you can comment down. I'll make videos on that. Okay. So last thing is, if I were you, I would start preparing the most important thing first. Most important thing first is I'll start writing the paper 2. I'll solve the previous year question of paper 1. So do not defer the most important things. Do the most important thing first. क्योंकि energy, time, everything is limited. I've seen people कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते ही नहीं है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो वो सोचते हैं लास्ट में करूंगा, एग्जाम से 2 महीने पहले करूंगा, जब तक उनको पैटर्न नहीं पता चलता. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए करने चाहिए शुरुआत में, जिससे आपको पैटर्न पता चल जाए कि क्या पैटर्न है. राइट. सो अल्टीमेट एडवाइस इज डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द इनिशियल फेज ऑफ योर लर्निंग और इन द इनिशियल फेज ऑफ योर प्रिपरेशन. सो दिस इज ऑल. कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई सजेशन आपको देना हो, यू कैन कमेंट. थैंक यू.